Ma'am, we are live on Facebook and we have started the recording. Just give me a minute to play the video. Just give me a minute, some technical glitches. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसकाय, केड़ो हाल है, केम छो। ग्लोबल एजुकेशन फ्रेटर्निटी द्वारा एक शाम गांधी जी और शास्त्री जी के नाम उनका सपना आत्मनिर्भर भारत आज कितना आत्मनिर्भर। इस पैनल डिस्कशन में मैं आभा जादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज गांधी जी जयंती और शास्त्री जी की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। So first of all, I will call upon Rachna Bhimrajka ji to inaugurate the program with her inspiring words. Rachna ji, over to you. नमस्ते। 2 अक्टूबर हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय महत्व का दिन है, क्योंकि इस दिन एक नहीं बल्कि 2 महान नेताओं का जन्म दिन है। जन्म भारतीय भूमि में हुआ था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 2 अक्टूबर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अहिंसा और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश की आजादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया था, देश की आजादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया था, सत्य और अहिंसा से जिसने अंग्रेजों को भगाया था, सत्य और अहिंसा के लिए जिसने अंग्रेजों को भगाया था, और स्वतंत्र भारत में जय जवान जय किसान का नारा जिसने लगाया था, आओ मिलकर मनाएं उन 2 महान नेताओं का जन्मदिन जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया था। इसके साथ ही मैं आज के कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए आमंत्रित करती हूँ मिस आभा जादव को, जो कि एक स्कूल राहुल इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक एवं प्रधानाचार्य हैं, पूना से हैं, एक पेरेंटिंग कोच है, लेखिका है और एक पॉडकास्टर भी है और हमारी घनिष्ठ मित्र भी है। इसके साथ ही आभा जी, द फ्लोर इज ऑल योर्स। जैसा कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के बारे में बातें करते थे और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इसी पे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कार्य हो रहा है। सो आज हम लोग बातें करेंगे, आज चर्चा हमारी होगी कि भारत आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है। सो ओवर टू यू आभा जी। Thank you, Rachna ji. First of all, thank you very much for inviting me over here and giving me an opportunity to host this program on this auspicious day. आज के दिन मुझे यह कार्यक्रम होस्ट करने के लिए जो ये आपने मौका दिया है उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। So friends, before I start today's panel discussion, let me first give you brief introduction about Global Educators Fraternity. Rachna ma'am ji, please PPT. Yes.
So what is Global Educators Fraternity, GEF? GEF, that is Global Educators Fraternity, is an association that hankers to build global citizens around the globe to spread awareness in various aspects to make a better quality life, where the like-minded people have joined hand in hand under one roof, which adheres to cater to the current issues in the education fraternity at a global level and create responsible and responsive citizens. Our aims is to mentor best practices and upgrade already established practices to serve the community and meet the societal needs. It aspires to promote education through various domains of learning, such as cognitive and social emotional skills. Our vision is to acquire skills and knowledge to promote sustainable development goals and to provide a network for expanding the spirit of creativity, innovations, and to prepare the young and generations with great values globally to make the world a better place. Our mission is to nurture the global learners with introspection and adjurations with the guidance of the experts to bring a revolution in the education fraternity to achieve a long-term sagacious transformation how citizens think and act, to develop the key competencies needed in all the facets. Our upcoming aspirations are webinars and workshops for the betterment of learners and society at large, to enhance the personal traits and professional skills of the citizens globally, to broaden the horizons of knowledge to underprivileged learners in less progressive zones, to create awareness program about health and hygiene, seminars on vocational and career counseling, and many more. So that was about Global Educators Fraternity. And now let's move on to our today's main program. So here I welcome all the panelists who are going to speak today. So before that, आज 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, उनकी जन्म जयंती पर आप सबको और पूरे राष्ट्र को इस मंच से बधाइयां देती हूँ। महात्मा गांधी एवं शास्त्री जी दोनों ही चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर देश बन जाए और हमारे देश में विदेशी कंपनियों या विदेशी उद्योग जो हैं उनकी जगह स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के विचार को ही आधार बनाकर काम करना शुरू किया है। आज आत्मनिर्भर भारत की गूंज है। स्थानीय वस्तुओं को, स्थानीय उत्पादकों को उनकी चीजों की सही कीमत दिलाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। अगर आजादी के वक्त कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के विचारों को स्वीकार कर लिया होता तो शायद देश में बड़े बड़े उद्योगों की जगह छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का आज जाल बिछा होता। तकनीक और उत्पादकता गांव और तहसील के स्तर तक पहुंच चुकी होती। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने छोटे उद्योगों की बजाय बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर जोर दिया, जिसके तहत बड़ी बड़ी कॉटन और इस्पात की फैक्ट्रियां लगाई गई। नेहरू इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे, लेकिन दूरदर्शी सोच न होने की वजह से इसमें से ज्यादातर बंद हो चुकी हैं। शुरुआत में इन बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर थे वो गांवों से शहरों की ओर आए। इससे गांवों से बड़ी आबादी जो है वो बड़ी पैमाने पर शहरों की तरफ विस्थापित हुई। शहरों पर आबादी का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया और गंदी झुग्गी झोपड़ियों की परंपरा सी शुरू हो गई। कोरोना काल में जो मजदूरों का संकट हम सब ने देखा कि कैसे मजदूरों के झुंड महानगरों से पैदल अपने गांव जाने को मजबूर हो गए, वह शहरीकरण के दुष्प्रभाव का ही एक दर्दनाक दृश्य था। गांधी जी ने ऐसी ही विसंगतियों को दूर करने के लिए ग्रामीण इकाइयों के विकास का सुझाव दिया था, लेकिन गांधीवाद की माला जपने वाली कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी गांधी जी के मूल विचारों को ध्यान नहीं दिया। लेकिन समय ऐसा आ चुका है कि हमें गांधी की मूल व्यवस्था पर लौटना ही पड़ेगा। ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता पूरे भारत की विकास की तकदीर बदलने वाली है। वहीं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, जिनका जन्म साल 1904 में मुगल सराय के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्हीं के नेतृत्व के
नेतृत्व के अंतर्गत भारत ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान उन्होंने ही दिया था। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शास्त्री जी के विचार जो विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए आधुनिक भारत की नींव है, वह कुछ इस तरह है। उनका कहना था कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। और मेरी समझ में प्रशासन का मूल विचार यह है कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वह विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सके। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के पैनलिस्ट का स्वागत करती हूँ। So let me welcome all our panelists for today's discussion. Ms. Arpita Srivastava Rai, Ambassador, Atmanirbhar Bharat Abhiyan; Major Muhammad Ali Shah, an Army veteran, renowned international TEDx speaker, trainer, coach, and an actor; Ms. Monica Khurana, Vice Principal, the Millennium School, Surat, Gujarat; and Wing Commander Rakesh Kumar Prashar, a retired Air Force officer, safety passionist, motivational speaker, trainer, coach, and an author. So welcome to our program, all my dear panelists. Welcome. So to begin with, I would like to call on Ms. Arpita Srivastava Rai to put forward her views as an ambassador of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. But before that, let me give her a quick introduction. A strong, independent social entrepreneur, CSR professional having 20 years of experience working with CXO levels for top corporate, social sector, and educational institutions, brand ambassador and jury at multiple organizations. She lives by the principle of empathy and gratitude with the success mantra: be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve. With her philosophy of life, art of living, a life of giving is the worth life living. She believes in one's need to keep challenging its own strength, to keep exploring and evolving to be a better version of yourself. Recently crowned as glamorous public speaker at the International Glamour Project, Mrs. India 2021. So Arpita ji, how far do you feel India has become a self-dependent country since our independence? And how are you taking it further as an ambassador of Atmanirbhar Bharat Abhiyan? सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार अपने सभी श्रोताओं को। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आप सभी को मेरा शत शत नमन और आभार व्यक्त करना चाहूंगी ग्लोबल एजुकेटर फ्रेटर्निटी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने विचारों को आपके समक्ष साझा करने के लिए। जैसे कि आभा जी ने मुझसे प्रश्न पूछा, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि ये जो शब्द आज आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट का हम बात करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तो आई वुड लाइक टू कोट इन कंटेक्स्ट विद शास्त्री जी एंड महात्मा गांधी. Well, in October 1990, Gandhi ji gave a speech at Bhagani Samay, Mumbai. In that speech, he stressed the need for making India Atmanirbhar. The exact words used by the Mahatma Gandhi in the Hindi speech was that Atmanirbhar hona seekhna hi hoga. The speech referred to the benefits of the chakra. And do you know what was the interesting part of that was that when he said that there is no other occupation which millions of women can engage while staying at home. So you can understand that what Atmanirbhar he wanted to stress. I'm taking in context of women-centric as I'm a woman. And that's how this is reflected in his one of the milestone initiative, Vocal for Local, where he encouraged women in their house only that they can have their entrepreneurial skills and can be independent. Well, now in the context of Shastri ji, I would love to quote one of his speeches at the 83rd death anniversary of Swami Dayanand Saraswati in Delhi on October 24, 1965, when he said, "The nation cannot afford to relax.
It is difficult to say what the future holds for us. The country's defense has to be strengthened side by side. Food production has to be increased. Food self-sufficiency is an important as strong defense system. And this was his reason that he raised the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Now, as being said that how we see this, the reflection of both Shastri Ji's ideologies and our Mahatma Gandhi's ideologies, I'm really delighted and proud to say that the amalgamations of both the thoughts have been reflected in our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. And our Atmanirbhar Bharat or Self-Reliant India campaign is the vision of the new India, investigated by Honorable Prime Minister. Now, as you said that what I see when it comes to the self-dependence, well, I think the biggest example in front of all of us is this pandemic, that how generously with all the uncertainties are the leadership has proved their competencies. So some of the things I would highlight when I say Atmanirbhar Bharat, self-reliant in our country. So I would like to quote some of the key headers in this line. Well, in his speech, on the Independence Day, our Honorable Prime Minister has quoted that the foreign direct investments, which reflects the global firms to India, has really boosted 20%. Okay, so you can see what kind of international, reflection of India he has enhanced during this pandemic. Now, I would also like to reflect one of the reforms in sense of where he highlighted one nation, one tax, the insolvency and bankruptcy code, and the major bank mergers and the attentions of the global investors. According to the Reserve Bank of India, there was about 74.4 billion FDI flow in 2019. This is the status given by the Reserve Bank of India. And one, as I already mentioned, that one of his initiatives were Vocal for Local, where he raised citizens to really, become self-reliant and to promote Atmanirbhar Bharat, where we can see in this pandemic, the manufacturing of the N95 mask and the PPE kit, where we have the reliability on the other countries. We proved them wrong while manufacturing it in our own country and then to supplying to other countries also. So I think this is one of the biggest examples that I can quote and proudly say that yes, India is going towards being Atmanirbhar and self-reliant. Well, I would also like to quote one more thing, that as you said, how I see this vision though belongs to all of us. If we all individual give 1% of our energy in promoting the vision, I think we all will owe that responsibility. So me as a social reformer, or you can see me as a social activist, as an individual, anyone can ask what one person can contribute. I'm sorry. There's a very famous quote, from Mahatma Gandhi when he says that, you can change the world by yourself. And the time you have to decide what you need to do. It's your destiny. So as an individual, when the pandemic hit, we were all, now I cannot go out. I was just confined to 4 walls. What initiative did I did to make it happen? So I, capitalize my energy, develop a methodology where I can channelize my energy with all my fellow people in a very productive way. And that's how it was a very successful drive of mine, Atmanirbhar Bharat Vocational Learning, where my vision was to make rural India self-reliant to vocational learning, where it was a 45-day session, beautiful session catering to all the vocational learning, where international people also participated, and I was the brand ambassador, and still we are doing it. So that's how, if each one of us can pick those responsibility, I think the dream that we all wish, कहा जाता था इंडिया सोने की चिड़िया है, I think it all lies in our hand. That dream can yet come true, and I'm very, very hopeful
that with the leadership that we have today with us and the people, the thinking process is changing, and we are proud to say that we are an Indian. And now the day has come. So all the best. And I would say to all the viewers, thanks once again. And thanks Global for giving me this opportunity to express my words to you. Thank you. Thanks a lot. That's fantastic, Arpita ji. And you have said very well कि अगर हम भारतीय नागरिक जो हैं लगभग 135 करोड़ की जनता, अगर हम सब अपना एक एक एफर्ट भी अगर लगा लेंगे शायद तो हमारे देश को हम आत्मनिर्भर बनाने में कहीं पे भी पीछे नहीं रह जाएंगे. So very well said. Moving further, now let me introduce Major Muhammad Ali Shah. So before I invite him to present his views, let me introduce him. Major Muhammad Ali Shah is the most sought after international TEDx speaker who has given the highest number of TEDx talk not only in India but in the world. As a motivator and speaker, he specializes in converting one's negative into positives, disadvantages into advantages, liabilities into assets, darkness into light, weaknesses into strengths. He is also a political analyst, a defense expert, and a defense analyst on many popular Indian news channels. And along with all these roles in his life, he is also a passionate actor. Major Ali won the coveted award of Best Actor at the prestigious Delhi International Film Festival, Best Actor at International Film Festival of Prayag, apart from a special mention by jury and critics for outstanding performance, and Best Actor at the Aligarh Film SARS International Film Festival. So, yes, Major, I would like you to throw light on what is the essence behind being Atmanirbhar when we talk of Indian Army. Thanks, Abha. Firstly, I would like to say hello and Jen to my senior from the forces, Wing Commander Rakesh Prashar sir. Jen sir, what an honor to be here on the panel with you, sir. Arpita ji, Monica ji, Rashna ji, of course. Abha is a very, very dear friend. Rajesh ji, Mr. L.R. Prashar sir, Renuraj ji, Rashmi ji, Julie ji, Love Prakash ji, Kush ji, Anandi ji, Govind ji, Geeta ji. A very good evening to you all and all our panel, all our viewers who are watching us live on the stream right now. So, Abha, a very, very good question. You know, it was Gandhiji's dream to see us. In fact, why only Gandhiji? It's all of our dreams to actually stand on our feet. And when you said that, you know, what about the forces? Before I go on to the forces, I would like to tell you, all of us, we all have been about 18 years of age, right? All of us have gone through that stage. When we are deciding what we should do after our school, which college to enter, and after college, what to do, which career to take up, how to be Atmanirbhar, how to be independent, how to not depend on your parents for the pocket money, right? So there's a small poem. I would begin with that, which I would, with your permission, which I would like to narrate to all of you, in fact. We both left home at 18. Now, this poem, I have not written this. I think it's the author is, I don't know who the author is, but I presume it's written by a gentleman by the name of Mr. B. Kumar. So I got it on the internet and I loved it. I read it a couple of times and I loved it so much that while reading it, I ended up learning it by heart. We both left home at 18. You cleared the prestigious JEE. I cleared an entrance test of UPSC. You got IIT. I got NDA. You pursued your degree. I pursued my passion and underwent the most rigorous and the toughest training. Your day started at 9 and ended at 5. Mine started at 5 and went on beyond 9, which meant I had to stay up many nights. You had your grand convocation ceremony with style. I had my passing out parade with pride. Best company took you and the best job was offered. Well, I was pipped with 2 stars on my shoulders, which I perceive is worth more than $1 million in the sky. You got a plum job.
and became Atmanirbhar. I got a way of life and became Atmanirbhar. We were both sent on our respective duties. You were sent on luxurious business trips. I was sent on the rugged line of control. You got to see your family every day. I just wished I got to see my parents soon. We both got married because we were Atmanirbhar now. So we could afford to get married, right? So we both got married. Now, after getting married, we both went on our respective duties once again. And we both returned. You celebrated festivals with lights, music, fireworks, and played with firecrackers. I celebrated festivals with lights, music, in underground bunkers with my comrades with real firearms, and played with my life. When we returned, both wives couldn't control the tears. And you wiped hers, but I couldn't. You hugged her, but I couldn't. Because my bullet-ridden body was lying in the coffin with medals on my chest, and the coffin was wrapped with a tricolor. My way of life ended, yours continued. We both left home at 18. I became a martyr and became immortal, because martyrs never die, they become legends and live in our hearts and minds forever. How can a man die better than facing fearful odds, serving the ashes of his fathers and the temples of his gods? When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. So, in the Army, Air Force, Navy, in the Indian Defense Forces, we believe in becoming Atmanirbhar. We believe in becoming independent. I'll give you an example. For example, if we have a birthday celebration, I just celebrated my birthday, my 42nd birthday a couple of days back. So I'll give you that example. We are going to order cake from a bakery, or we bake a cake at home. Which is better? Obviously the homemade cake, because you have made it, you know about the ingredients, you are aware of the hygiene of it. Similarly, when we manufacture either a radar or a submarine or a jet plane equipment or any equipment, artillery equipment, for example, we have exported it from outside. Yes, we assemble it, it takes time. But if we have manufactured on our own, then nothing like it. Recently, our government has approved expenditure. They have enhanced the budgets for the Make in India, for making defense equipment within the country. I'll give you a small example. Moving a bit away from the defense, America had put a ban on certain raw materials regarding vaccination. We all had our 2 shots. Yes, I'm talking to you. I'll not take the name, but you, yes, you, yeah. I'm smiling now. Your camera's off, but yeah, but now switch on your camera if you want. I can still see you. I have a software with a camera which are off, but I can still see them from here. Okay, looking smart. All right. So now America had put a ban saying that there will not be any export of the raw materials for India to manufacture vaccines. The COVID-19, anti-COVID-19 vaccine I'm talking about. Well, we said, okay, we had no other choice but to start manufacturing those raw materials at home. And when we manufactured those raw materials at home, what happened? We ended up administrating over 250 crore vaccination in one day, in one single day. You can call it a coincidence or whatever, but that same day, America told India, why don't you export these vaccines? So earlier when we needed the West, we need America. Now America also needs us. You talk about the Quad formation. America, India, Australia, and Japan would train the fighter pilots in the Anderson Air Force Base in America. So that in the South China Sea, where Chinese aggression was going on, it can be curbed to a large extent. That's the Quad, the combination of these 4 nations, right? Now, what happened?
China, which is our adversary, started feeling guilty conscious that, oh, now these nations will unite together and they will plan a strategy against me. Just today's news is we have Pakistani soldiers who have been deployed in China with the PLA, colonel ranking officers, apart from the defense attachés. But in India, we are all Atmanirbhar, we are all independent, and we can stand tall. So when we both left home at 18, we were earning our own money, so we could stand tall. Same example I'm giving over here. For a soldier, if I have my equipment, if I have a gun, if I know my gun, खोलना, जुलना, जोड़ना, सफाई करनी आती है उसके हिस्से पुर्जे सब मालूम है, तो वो आपके शरीर का एक हिस्सा होएगा. जब मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में था, हमारी पोस्ट पाकिस्तानी पोस्ट से 30 मीटर के फासले पे थी. कितने? 30 मीटर के फासले पे. यानी कि अब पत्थर भी फेंकेंगे तो वहां तक पहुंचेगा. अब सोचिए ऐसे सिचुएशन में, जब 2 साल वहां पे थे हम, 3 साल मणिपुर नागालैंड में थे हम, तो ऐसी सिचुएशन में डील करना, आपके पास एक ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जिसपे आप यकीन कर सकें, आपको भरोसा हो उस पे. एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू आर आत्मनिर्भर. मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं एक छोटी सी कविता और सुना के. ये माखनलाल चतुर्वेदी साहब की कविता है, पुष्प की अभिलाषा. ये अभा ये कविता जानती है, मैं जानता हूँ अभा जानती है कविता, बल्कि अभा नहीं, मेरे को सुनाई दी कविता एक बार एक सेशन में. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तेरा तुम फेंक, उस पथ पर जिस पर शीश चढ़ाने मातृभूमि पर जाएं वीर अनेक. शुक्रिया बहुत बहुत. जय हिंद. और मेरा एक YouTube चैनल है मेरे नाम से, YouTube पे मोहम्मद अली शाह, उस पे मेरे काफी सारे टॉक्स हैं, मेरे 17 TEDx टॉक्स उस पे हैं और काफी मेरे टीवी पैनल डिस्कशन है. आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. अगर आप YouTube करेंगे आप मोहम्मद अली शाह, आपको मिल जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. Wow, that was really fantastic, Major. As usual, हर बार आप हम सबको अपनी मनमोहक स्पीच से बिल्कुल mesmerize कर देते हैं, हमें आश्चर्यचकित करके, कहते हैं ना, we become spellbound. So yes, once again you rocked. So moving further, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर होने की, तो आत्मनिर्भर की, जैसे कि अभी जस्ट नाउ जैसे आपने मेजर जी आपने बताया कि केक अगर अपने घर का बना हो, उसमें जो प्यार की खुशबू है, उसमें जो अपनेपन की खुशबू है, वो उसी तरह से स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे देश में बने हुए हैं, हमारे अपने कुटीर उद्योगों की बदौलत आए हुए हैं या हमारे गांव से आए हुए हैं, तो उनमें जो गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है, उसको हम चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते. और फिर वो चीज अगर हमें अमेरिका में भी बैठे मिले तो कहीं ना कहीं हम अपनी मिट्टी से जुड़ जाते हैं. सो यहाँ आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हमें स्वदेशी होना भी बहुत जरूरी है. अपनी चीजों को, अपने देश में बने प्रोडक्ट्स को हमेशा यूज करें और उनको प्रमोट करने से ही हम आत्मनिर्भरता की ओर अपना एक स्टेप बढ़ा पाएंगे. सो हियर नाउ आई इनवाइट मिस मोनिका खुराना, an educationist since 30 years, passionate about inculcating values, life skills, and knowledge in our students. Currently working as a vice principal at the Millennium School, Surat, Gujarat, to express her views. So, Monica ma'am, I would also like you to throw light on how today's children can become self-dependent or say Atmanirbhar. Thank you, Abha. Good evening to everyone. It was very, very inspiring to listen, Major Ali and Arpita. Thank you very much for sharing your thoughts. And once again, my namaste to everyone who is there on the platform. Question what you have given, Abha, is so beautiful. I would just start with one thing. हम अभी बात कर रहे हैं घर की, हम अभी बात कर रहे हैं स्वदेशी और विदेशी चीजों की, बट सबसे पहले हमारा घर और हमारे बच्चे. हम अगर कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री से पहले हमें अपने घरों की तरफ देखना होगा
हमें हमारे बच्चों की तरफ देखना होगा, तब हम असली में आत्मनिर्भर भारत की कल्पना या उसको एक्चुअली पॉसिबल बना सकते हैं। तो as a vice principal, as an educationist, I would like to throw my light towards what we have to do and what children can do, what actually their meaning is for Atmanirbhar Bharat, क्योंकि उन्हीं से हमारा संसार है। अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट, normally what we calculate with this is that when children will grow old, और हम थोड़े बच्चे और बड़े हो जाएं, तब हम उनको देखेंगे कि वो अपने आप सब कुछ कर पाएं। तो पहली चीज, my dear friends, we all have to change our attitude, we all have to think differently if we really want to have आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एडल्ट की बात नहीं करता, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ ये नहीं बोलता कि आप 18 साल से बड़े हो जाओगे तो आप कुछ कर लोगे। आत्मनिर्भर भारत बात करता है उन बच्चों को स्किलफुल बनाने की जो बचपन से, एंड बचपन से जब मैं बोल रही हूँ तो 1 साल की उम्र से हम जब उनको उस तरीके से ग्रो करेंगे, उस तरीके से स्किलफुल करेंगे कि वो अपने लिए देख पाए, अपने देश के लिए देख पाए, वो होगा आत्मनिर्भर भारत। उसके लिए सबसे पहले what we have to change is our own attitude, our own way of thinking। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को why, what and how नहीं सिखाएंगे, तब तक हम उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। सबसे बड़े देश के स्टेक होल्डर्स हैं पेरेंट्स और बच्चे, और उन दोनों के एटीट्यूड में जब ये बात आएगी why, what and how, ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली पेरेंट्स साथ सोचने लग जाएंगे कि हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, और जैसे मैंने कहा वो 1 साल की उम्र से हो जाएगा। मोस्टली नानी दादी मम्मी बोलती है मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो मैं एक साल के बच्चे को अपने आप अपने हाथ से खिलाऊंगी, नहीं तो वो बच्चा कपड़े गंदे कर देगा, नहीं तो वो बच्चा आसपास की जमीन को गंदा कर देगा। बट उस स्टेज का आत्मनिर्भरता क्या है कि वो अपने आप खाए, गिराएगा तो क्या हुआ, हम बैठे हैं ना सफाई करने के लिए, सर्फ एक्सेल वालों का एड कब काम आएगा, उनकी धुलाई कब काम आएगी, तो वो कपड़े धुल जाएंगे, वो फर्श साफ हो जाएगा। लेकिन जब वो पहला कदम, पहला हाथ बढ़ाएगा अपना खाना खाने के लिए, वो समझ जाएगा कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए अपनी चीजें खुद प्रोड्यूस करनी है, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैं कल को उठ के यहाँ से भाग पाऊं। तो सबसे पहला कदम मेरे दोस्तों उस तरफ लीजिए जहां पर अपने बच्चों को उनकी क्षमता पहचानने दीजिए, उनको देखने दीजिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं। आई बिलीव हम सबने लेटेस्ट वीडियो देखी होगी जहां पर 4 साल का बच्चा यूएसए में प्रोफेसर बने हैं और उनको अवार्ड्स मिले हैं। अगर 4 साल का, बट ऑफ कोर्स दैट चाइल्ड मे बी सम एक्सेप्शनल जीन, बट 4 साल का नहीं तो 14 साल का हो सकता है। सचिन तेंदुलकर तो हमारे देश की पैदाइश है, वो हमारे लिए ही सबसे बड़ा गुरु है कि 14 साल में भी ऐसा काम हो सकता है, ऐसा मैच खेला जा सकता है। तो वो चीज करने के लिए हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, हमें उनको सोचने की क्षमता देनी है, हमें हर चीज के पीछे उनको लॉजिकल अप्रोच सिखानी है और डिसीजन लेने की पावर देनी है। जैसे मोहम्मद सर ने बोला कि बच्चे आईआईटी और इंजीनियरिंग और साइंस की बातें करते हैं, लेकिन वो हमारे फोर्स से नहीं, वो अपने खुद के डिसीजन से अगर करते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि कोरोना या कोई भी बीमारी हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए हमारे साइंटिस्ट रेडी होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें उनको डिसीजन लेने की पावर आगे बढ़ानी है, और उसकी शुरुआत छोटे छोटे घरों के काम में, छोटी छोटी चीजों में। स्कूल्स में हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारे बच्चों को हम ये वाली एक्टिविटी कराएंगे, बट ऐसी एक्टिविटी क्यों नहीं जहाँ पे वो खुद ही एंटरप्रेन्योर बन जाएं, ऐसी एक्टिविटी क्यों नहीं जहां वो छोटी सी क्लासेस से अर्निंग कर पाए। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, हम स्कूल में करते हैं बेक एंड सेल, लेकिन हम करते किसके लिए हैं? बच्चों को बोलने के लिए कि बेटा हमारी एक्टिविटी कैलेंडर में लिखा है कि आज आपको बेक एंड सेल करना है और पैसे कमाने हैं, और हम जाके ओल्ड एज होम में या कहीं पर दे देंगे। लेकिन हम उसको क्यों नहीं सिखाते कि वो बेक एंड सेल उनका लाइफ लॉन्ग अर्निंग प्रोसेस भी बन सकता है, और एज उसके लिए कोई बार नहीं है। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है फिनलैंड, जहां इतने बड़े देश में 2 लाख सिर्फ लोग हैं और वो सब कुछ अपने आप करते हैं और छोटी सी एज से करते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हमारे बच्चे तो उनसे डबल एज, डबल प्रोफेशनल हैं, डबल स्ट्रेंथ रखते हैं और कितनी स्किलफुल लाइफ जीते हैं।
बट हमें सिर्फ उनको स्पार्क देना है कि ये काम जो आज आप एक एक्टिविटी के फॉर्म में कर रहे हो, उसके बदले अपने लिए करो और अपने आप को जगाओ और इसको आगे लेके बढ़ो, क्योंकि तुम छोटी सी उम्र में भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। और वो हो भी रहा है। अगर हमने लेटेस्ट एड्स देखे हैं कोडिंग के, बच्चे बोलते हैं हम कोडिंग को बेचेंगे, सेल करेंगे, एंड वी आर अर्निंग सो मच ऑफ डॉलर्स और सो मच ऑफ रुपीज। सो ये क्या है? ये कदम ही तो है, बिना ये सोचे कि वो कितने साल का बच्चा है। लेकिन मौका किसने दिया? हमने दिया। बजाय इसका कहने के कि अरे इतना छोटा बच्चा पैसे को कैसे डील करेगा, हमने उसको डील करने दिया। हाँ, हमने पीछे निगाहें रखी, हमने पीछे, हमारा एज एडल्ट हमारा फर्ज था कि हम उनके एक्शंस को देख पाए, लेकिन उनको करने का मौका दिया। और ये कोई उनके लिए बहुत बड़ा वो नहीं क्रिएट किया कि मनी मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमने उनको उनके भाव में बहने दिया। मोदी जी की शिक्षा, 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, सप्लाई एंड डिमांड, ये हमारे बच्चे रोज खेलते हैं इन सारी चीजों से, सिर्फ हमें पता नहीं है और हम उनको दिशा नहीं दे रहे। कैसे? इकोनॉमी, जैसे मैंने बोला, बेक्सेल, ऐसे ही कितने सारे आजकल वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशंस हैं जो छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं। और वो इकोनॉमी ही तो हुआ जब वो उससे खेल के कुछ अर्न करके ला रहे हैं, अपनी स्किल को आगे लाके, और कुछ उससे अपने लिए और कुछ दूसरों के लिए, कुछ समाज के लिए दे रहे हैं। तो इकोनॉमी तो उनके हाथ की गेम है और उनको सिर्फ हमें दिखाना है कि आपको ये जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होती। अगर हम उनको ये समझाएं कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, पेपर वेस्टेज क्या है, पेपर रिसाइकलिंग क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, प्लास्टिक यूजेज क्या है, तो ये क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी एज के लिए है जहां वो आगे बढ़ पाए। तो उनका कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली आएगा उस पिलर के लिए जो मोदी जी और हम सबका नारा है। टेक्नोलॉजी का आज की डेट से आगे तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। टीचर्स पर्टिकुलरली, बिकॉज मैं एजुकेशन फील्ड से हूं, तो मैं बार बार घूम के अपने ही फील्ड की बात करूंगी। आपको सबको पता है कि टीचर्स उतना टेक्नो सेवी नहीं थे, लेकिन विद इन 15-20 डेज उन्होंने अपना फॉर्म कैसे बदला है। आज की डेट में शायद आप और हम और आईटी पर्सन कम जानता होगा कौन से एप्स हैं, टीचर्स जानते हैं। टीचर्स को पता है कि बच्चों को कैसे करना है, और अगर टीचर्स को पता है तो ऑटोमेटिकली बच्चों को पता है, और बच्चों को पता है तो उनका यूजेज तो आएगा ही आएगा। उसमें कोडिंग एक एग्जाम्पल है, एडवेंचरस टूर एक एग्जाम्पल है, फील्ड ट्रिप्स इतने सारे आजकल बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं, इतने सारे शोज ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे कहाँ पीछे हैं आत्मनिर्भर होने से? डेमोग्राफी, कहाँ हम रहते हैं, एक बार हमें सिर्फ उनके उसकी इंपॉर्टेंस और लोकल नीड्स को बताने की जरूरत है। हम बच्चे को सिखाते हैं कि डांस बेटा ये वाला फॉर्म है, तुम ये फॉर्म करोगे तो जीत जाओगे, लेकिन ये नहीं सिखाते कि उस फॉर्म को उस धरती से जोड़ा कैसे जाता है और उसको कैसे इंटरनेशनली पहुंचा दिया जाता है। एक्सचेंज प्रोग्राम नाम देते हैं, लेकिन एक्सचेंज प्रोग्राम पे उसका वो यूज कैसे कर सकते हैं, उससे वो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, एक्सचेंज में कुछ सीखना और सिखाना कर सकते हैं, वो शायद थोड़ा सा हम चूक जाते हैं। इसीलिए हम उसको आज आत्मनिर्भर भारत के फॉर्म में नहीं देख पा रहे, लेकिन है तो वो भी उसी का फॉर्म। तो देखो तो सारी चीजें हम उसी तरफ जा रहे हैं। अब आता है लास्ट, सप्लाई एंड डिमांड। बहुत प्यारी चीज है, जितनी कम चीज अवेलेबल होगी उतनी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आज की डेट में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि इन बच्चों को सिर्फ बता दिया जाए कि बेटा ये वाली चीजें आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ में आगे बढ़ो, हम तुम्हारी डिमांड जो भी होगी, जो मार्केट की डिमांड होगी, वो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को देख के प्रूव कर सकते हैं। आई बिलीव हम सबको पता है अकाउंट्स का आजकल स्टॉक एक्सचेंज का भी कोर्स है जो छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, स्टॉक वर्ड देखते ही डर जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, हर्षद मेहता नहीं क्रिएट करना। बट हर्षद मेहता ने कुछ अच्छा भी किया था। तो दोस्तों, सिर्फ हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक हल्की सी डिफरेंट विजन की जरूरत है, बाकी तो सब कुछ हमारे पास है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बच्चे ऑलरेडी आत्मनिर्भरता की तरफ हैं, और उसी का एक प्रोग्राम एनईपी जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए फोर्स कर रहा है, एक और स्टेप है उस दिशा में। सो आभा जी, मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि हमारे बच्चे डिसीजन भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऑलरेडी वो उस दिशा में है।
सिर्फ हमारी सोच, why, how and when की जरूरत है. Thank you very much. Wow, fantastic, Monica ma'am. That was really fantastic. हमेशा कहा जाता है कि किसी भी बड़े आधार का किसी भी बड़े अभियान का जो आधार है उसकी छोटी से छोटी इकाई पे जब अच्छे से काम किया जाए तो डेफिनेटली वह कार्य वह अभियान सक्सेसफुल होता है, सफल होता है. और जैसा कि मोनिका मैम ने बताया कि आत्मनिर्भरता की सबसे छोटी इकाई जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो नींव है, वो है हमारा घर, हमारे बच्चे. तो आज से हम हमारे पेरेंट्स को यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि अपने बच्चों को जो भी ये हमने आज हमारे यहाँ बातें शेयर की गई हैं उसको प्रेरणा लेकर के हम अपने बच्चों को उस तरफ उनके नजरिए को मोड़ें, उनको हम स्वदेशी चीजें यूज करना सिखाएं, पिज्जा नहीं पर पराठों की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट करें और आईपैड और आईफोन की जगह पर हमारे इंडियन टेक्नोलॉजीज में भी बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं. सो डेफिनेटली स्वदेशी rocks. So now we all come to our last panelist of the day, Wing Commander Rakesh Kumar Prashar. Born in the city of the Taj, in a proud defense family and having the opportunity of studying in different parts of the country, values like discipline, integrity, and compassion were instilled in him right from childhood. These have not only governed his action all through his life and helped shape his personality, but also led him to choose a career in the Indian Air Force, which offered him the opportunity of pursuing his hobby of adventure sports. After over 2 decades in uniform, he joined the corporate world in the safety domain, where he has been associated for over 2 decades now. The unfortunate and avoidable loss of life of workers in fulfillment of business goals influenced him to start the mission of making India safe. His passion for conducting safety training, inspired by the Safety Professional Excellence Award for Excellence in Safety Training, which he received in 2020, motivated him to start his own YouTube channel titled Organic Safety, and also he write a book by the same name with a view to spreading safety awareness and changing people's attitude to safety, something he is obsessed with. So Wing Commander Rakesh Kumar Prashar ji, how has the Atmanirbhar Bharat Abhiyan impacted the Indian defense sector? नमस्कार दोस्तों, परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी. And after a beautiful start with Arpita, a mind-blowing oration by Major Muhammad Ali Shah, and a inspiring discourse by Monica ji, I think there is nothing left actually to be done. So I only have the formality of doing something which is just left to be done. Namaskar, fellow panelists, the coordinator for today, Abaji, convener of the show, and all those people who have logged in. एक फौजी होने के नाते मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं आबाजी कि आपने मुझे डिफेंस सेक्टर पर आत्मनिर्भर भारत के प्रभाव पर बोलने के लिए कहा है. आज 2 अक्टूबर है, 2 महान नेताओं का जन्मदिन. एक ने हमें स्वदेशी का मंत्र दिया और दूसरे ने जय जवान जय किसान. ये मेरा मानना है कि इन दोनों के मंत्रों को अगर किसी ने सही मायने में अपनाया है, उनका सही रूप में अनुपालन किया है और सच्चे दिल से उन्हें लागू किया है, तो वो है, जैसे अर्पिता जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी. स्वदेशी आंदोलन का जन्म भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने की इच्छा से हुआ था, मगर दुर्भाग्यवश सैडली वे आंदोलन आजादी के बाद कोल्ड स्टोरेज में कहीं जाके दब सा गया. जय जवान जय किसान का मंत्र भारत को एक समृद्ध शक्ति के रूप में खड़ा करने का था, मगर दुर्भाग्यवश वहां भी राजनीति, व्यक्तिगत लाभ, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह ने वहां भी सेंध लगा दी. मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये दोनों मंत्र एक सिक्के का
एक ही पहलू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का जो विजन वास्तव में उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। अंतर है तो सिर्फ पहले और दूसरे सिक्कों में जो फर्क है, साइज में जो फर्क है, वो है इंप्लीमेंटेशन का। आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट आने वाले समय में भारत को ग्लोबल लेवल पर एक प्रमुख इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के रूप में देखने की इच्छा पर आधारित है, जो विश्व में शांति लाने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। दुख की बात है कि जिस देश ने अनादिकाल से अपने आत्मनिर्भरता की भावना पर गर्व किया है और जहां स्वतंत्रता के बाद डिफेंस प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा पोटेंशियल और इकोसिस्टम भी था, वहां पिछले 7 दशकों से उस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। स्थिति पर अब बदल रही है और डिफेंस सेक्टर में सुधार लाने के लिए निरंतर और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के सरकार के हालिया रुख और इसे बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के पीछे कारणों को समझना बेहद जरूरी है, जैसे अर्पिता, मेजर मोहम्मद अली शाह और मोनिका जी ने कहा। आज की तारीख में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। इस कारण आर्थिक रूप से भारत के इंपोर्ट बिल में वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि होती जा रही थी, जिसने करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाने में योगदान दिया था। यही नहीं, भारत अपने वेपन सिस्टम्स का 60 to 70% हिस्सा इंपोर्ट करता था। नोटेबली रशिया भारत का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है, जो भारत के डिफेंस इंपोर्ट्स को लगभग 49% हिस्सा है। ये हमारे लिए इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। हमारे क्षेत्र के तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक राष्ट्र पर निर्भरता की भी एक चिंता का कारण है। इसलिए भारत को इन इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल कंसर्न से निपटने के लिए एक रोबस्ट इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की आवश्यकता थी। सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई साहसिक नीतिगत सुधार किए हैं। इनमें शामिल है increasing the FDI limit in the defense sector to 74%, setting up of defense corridors in UP and Tamil Nadu, setting up of strategic partnership model to promote investments, liberalization of industrial license regimes, encouraging research and innovation in the private as well as the academic institutions, initiation of IDEX award in order to encourage innovations in the defense industry, corporatization of the ordnance factories, among other steps. डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रमुख रक्षा के सौदे जिन पर मोहर लगाई गई है, उनमें शामिल है आर्मी के लिए टैवर 95 और AK-47 राइफल्स का भारत में उत्पादन, 118 अर्जुन मार्क 1A 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक का DRDO में उत्पादन, आर्मी एविएशन कोर के लिए 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स का HAL में ही उत्पादन, इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का L&T और मैज़ेडॉन डॉकयार्ड्स के द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, इंडियन एयरफोर्स के लिए 40 HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट HAL में उत्पादित, 6 नए एयरबोर्न अवैक सिस्टम्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट का DRDO द्वारा विकास, 83 नए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का HAL में उत्पादन और पता नहीं कितने कुछ। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 2020 में भारत सरकार ने रक्षा उपकरणों के और प्रणालियों के 101 वस्तुओं को और मई 2021 में एक अतिरिक्त 108 वस्तुएं और के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इस कदम से अकेले स्वदेशी रूप से निर्मित
डिफेंस इक्विपमेंट से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। और हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो इज दिस नॉट रियली आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं हम लोग? भारतीय डिफेंस सेक्टर ने इस प्रकार साबित कर दिया है कि इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, और भारत को न केवल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचाने में, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है डिफेंस सेक्टर। धीरे ही सही लेकिन लगातार भारतीय एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री न केवल आत्मनिर्भरता की तरफ कदम रख रहा है, बल्कि मित्र देशों को डिफेंस इक्विपमेंट और मिसाइल्स निर्यात करके अपने डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने 2025 तक भारत में $26 बिलियन की डिफेंस इंडस्ट्री और कम से कम $5 बिलियन यानी कि 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। इन महत्वपूर्ण कदमों के परिणाम स्वरूप भारत, जो अब तक हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था, 2020 की नवीनतम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्रा जिसे कहते हैं, की रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस इक्विपमेंट के विश्व के टॉप 20 एक्सपोर्टर्स की सूची में शामिल हो गया है। इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, जो न केवल भारत को आर्थिक और सैन्य दोनों रूप से मजबूत करने की शक्ति रखती है, बल्कि हमारी समृद्धि, विरासत और हमारे पास की महिमा को भी वापस लाने की शक्ति रखती है। और जैसे अर्पिता जी ने कहा, जिसको हम सुन सुन के बड़े हुए हैं, सोने की चिड़िया। दोस्तों, मैं प्रेम धवन द्वारा लिखित फिल्म हम हिंदुस्तानी के मुखड़े के बोल से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, जो इस परिदृश्य में सबसे उपयुक्त है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और आभा जी, तो मुझे ये भी पता है कि आप को गाने का शौक है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी मधुर आवाज में इस गीत के अंतरे को हमारे सुनने वालों को सुनाएं, तो शायद इस शो को 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। गॉड। तो अंतरा कुछ इस प्रकार है। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग, ये अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर। Wow, that was totally rocking, राकेश जी। एंड इसके साथ हम पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम के अंत में। अब मैं राजेश राठौर जी से निवेदन करूंगी कि वे वोट ऑफ थैंक्स के लिए यानी कि आभार विधि के लिए आ गए हैं। ओवर टू यू राजेश जी। राजेश सर, 1 सेकेंड। राजेश सर वोट ऑफ थैंक्स करें, उसके पहले मैम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी जी। तो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग टू हियर फ्रॉम ऑल द स्टॉलवर्ड्स। और विंग कमांडर राकेश ने जो बोला कि हमारे जो 2 महान नेता थे, उन दोनों महान नेताओं का सपना सार्थक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। So before vote of thanks, just a small token of appreciation I would like to present. So Rajesh sir, just give me 5 minutes. Abha ma'am, it was an honor to have you here and to hear your pearls of wisdom. Kindly accept a small token of appreciation from us. Thank you so much.
although we did it last moment, so it's taking little time, but Major Muhammad Ali Shah, it was an honor to have you here and a small token of appreciation from our side. Mrs. Arpita Srivastav, a small token of appreciation for being there with us. It was an honor to have you here. Wing Commander Rakesh Kumar Parashar sir, it was an honor to hear from you, sir, and it was an honor. Thank you very much. It was an honor for Global Educators Fraternity to have you here on this 2nd October national holiday, and next year definitely, आज जैसे आभा मैम आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि सर आज 1 साल कंप्लीट हो गया, आई एम श्योर next year I will also be discussing the same with you. Thank you very much. Mrs. Monica Khurana ma'am, it was an honor to have you here, and thank you for your pearls of wisdom. And yes, our dear friend, Mr. Rakesh Rathod sir from Jammu, sir, it's always an honor to have you with us. A small gratitude of appreciation on behalf of Global Educators Fraternity. And now, sir, now I invite you for your formal vote of thanks. Over to you, sir. Okay, fine. Thank you very much, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं रचना मैम के लिए कहना चाहूंगा, मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आपने मेरे साथ ये साझा किया इतना खूबसूरत कार्यक्रम, क्योंकि आज बहुत ही महान दिन है, जबकि 2 महान आत्माएं गांधी जी और शास्त्री जी, उन्होंने सशरीर पृथ्वी पर अवतरित हुए और जिस तरीके से पूरी मानवता को प्रभावित किया कि आज भी अगर हम किसी भी विषय पर अगर कोई बहुत अच्छा विचार जानना चाहते हैं तो निश्चित ही गांधी जी ने उस पर कुछ ना कुछ कहा। और वास्तव में जब महान लोग जैसे कि बराक ओबामा वगैरह जब महान शख्सियतों के बारे में बात करते हैं, उसमें गांधी जी को सर्वोपरि रखते हैं, तो हमारा यानी कि हमें बहुत खुशी होती है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं आज की जो कार्यक्रम की जो संचालिका है आभा मैम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैम आपने बहुत ही नपे तुले शब्दों में जो अपना उद्बोधन दिया, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बिंदु आपने एकत्रित किए और हम सबके साथ साझा किए, जिससे कि हमारा जो ज्ञान है इस विषय पर काफी बेहतर हुआ। इसके बाद मैं अब उस यानी कि सिलसिले में उस तरीके से जाना चाहूंगा जिस तरीके से कार्यक्रम का समापन हुआ। तो सबसे पहले मैं विंग कमांडर राकेश सर का जो उद्बोधन था उसके लिए कहना चाहूंगा, सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी जानकारी आज आपने हम सबके साथ बांटी, और जैसा कि आपने कहा कि रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है आज रक्षा क्षेत्र, वो वास्तव में प्रशंसा का पात्र है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय हम वाकई में भारत के जो बेहतरीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने 1 लाख करोड़ रुपए की जो बचत है बहुत बड़ी है। और मोदी जी क्योंकि 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि किस तरीके से चीजों को बेहतर से बेहतरीन करते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं चूंकि 11 साल गुजरात में रहा, तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि मुझे भेजते रहते कि मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे पास रोज 4-5 ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, कहीं 50 चीजें मोदी सरकार के उनके नेतृत्व में। तो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है, इतनी खुशी होती है कि मैं हर पोस्ट के ऊपर कम से कम 10 वाक्यों का ये अपनी प्रतिक्रिया उन्हें जरूर भेजता हूँ। तो वास्तव में गर्व है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और मैं हमेशा ही उनको लिखता हूँ, मोदी जी आपका मार्ग यानी कि देश को ऐसे ही नेतृत्व देते रहिए, और भारत जो है
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्थापित कर रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी उसके मच। बाद मैं क्या ना, मोनिका मैम ने बहुत बढ़िया बात कही कि बच्चों को स्वावलंबी बनाना है। अच्छा जस्ट में, हाँ, बच्चों को स्वावलंबी बनाना है, उन्हें धरातल एवं मंच प्रदान करना है, हमें उन्हें घर के छोटे छोटे कार्यों में लगाना है। एक अच्छे कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण की जरूरत है बच्चों की। लेकिन उस समय मैम, अगर कहीं थोड़ा सा मौका होता है एक प्रश्न पूछने का, तो मैं कहना चाह रहा था कि आत्मनिर्भर, इन सब से पहले हमें बच्चों को राष्ट्रवादी बनाना है, हमें बच्चों के अंदर देशभक्ति जगानी है। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना महान बन जाए, कोई व्यक्ति भारत का सबसे अमीर इंसान हो जाए, लेकिन अगर फिर भी अगर वो इनकम टैक्स अपना अगर पे नहीं करता है ढंग से, तो मेरे लिए उसका कोई मायने नहीं। मैं तो सब अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा करोड़ों में कमाओ और लाखों में इनकम टैक्स पे करो। अगर टैक्स की चोरी करना देश के साथ गद्दारी है। और वाकई में ये तो सबको पूछना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि पापा मम्मा आप कितना इनकम टैक्स पे करते हो, जरा समय थोड़ी जानकारी दो। तो ये भी उनको एक आत्मनिर्भर बनाना है। और वाकई में बहुत एक पता नहीं कैसी चीज कह रहा हूं मैं, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज क्या है, लोग बात करते हैं कि क्या नाम, किस विद्यालय से कितने ब्यूरोक्रेट्स गए, कितने और गए, कितने लोग ऊंचाइयां छुए, लेकिन फिर वही बात है, उसके सामने भी बहुत अच्छा एक आई थी बात कि क्या हम उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या विद्यालय शिक्षक ईमानदारी का भी पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या कैरेक्टर बिल्डिंग भी इंटीग्रल पार्ट है स्कूलों का? होना चाहिए। अगर आज वाकई में, जैसे कि जाकिर हुसैन जी ने कहा था, when he took over 1967 in his presidential address, he said India needs citizens who should be silent and sincere workers, who must be honest people. So India really needs honest citizens. So that's the thing. And among all the personality traits, I think honesty is really something rare. I hope you all will agree with me. So मोनिका मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से यानी बताया, लेकिन हमें बच्चों को घुट्टी में घोल के पिलाना है कि बेटा ईमानदार बनो, बेटा देश के सच्चे नागरिक बनो। आप आत्मनिर्भर बन रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। और साथ में हमें बच्चों को ये भी बताना है कि ब्रांड्स कौन से हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी बड़ों को नहीं मालूम होता है कि अगर मान लीजिए आप टूथपेस्ट के अगर 10 ब्रांड्स है, उसमें कौन से इंडियन है, कौन से फॉरेन के। तो ये सारी बड़ी जानकारियों की जरूरत है। और वाकई में भारत का भी जो व्यवसायी हैं, उनको भी बड़ी गुणवत्ता लाने की जरूरत है। तो उसके मामले में ठीक है, हमारे बाबा रामदेव जी काफी यानी कि कार्य कर रहे हैं, और पतंजलि की जो यानी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं बड़े अच्छे हैं, और वाकई में अच्छा लगता है। आज भी उनका खैर दंत कांति वगैरह और उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि चले आ रहे हैं, उन लोगों को बहुत यानी कि उससे फायदा हो रहा है। तो मोनिका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगा मेजर साहब के लिए, मेजर साहब इस समय हैं सर मैम हमारे साथ में? मेजर साहब के लिए कहना चाहूंगा, तो बस उनको ही कहना चाहता मैं कि सर मैं भी एक फौजी ऐसे हूं कि एक फौजी बनना चाहता था। खुद तो फौजी नहीं बना, लेकिन सोचा कि चलो बच्चों को अपने यानी कि स्टूडेंट्स को पहनाऊंगा वर्दी। और मेरा सौभाग्य था कि मुझे सैनिक स्कूल लखनऊ से अपना शिक्षा जो यात्रा है वो आरंभ करने का मौका मिला। 1995 से लेके 2002 तक आज 125 कैडेट्स जिनको कि मैंने यानी कि एनडीए रिटर्न और एसएसबी की ट्रेनिंग दी थी बाकी लोगों के साथ में, वो आज आर्म्ड फोर्सेस में हैं। इस समय मेरे 42 कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। आज इतनी खुशी होती, मेरे बगल में 6 जैक अलाई सामा का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हितेश कुमार जब मिला मुझसे, टाटा सफारी से उतरा, एक जिप्सी आगे और एक जिप्सी पीछे, क्योंकि वो उरी से लौट रहा था लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांडर से मिलके। और जब उसे पता लगा मैं यहाँ पर, उसकी यूनिट यहाँ शिफ्ट हो गई थी और आया यूनिफॉर्म में, पैर छुआ, गले से लग गया। मैंने कहा हितेश यूनिफॉर्म में? बोला सर आप मुझसे मेरा अधिकार नहीं छीन सकते हैं। तो इतनी खुशी हुई। 44 RR शोपियां में, अभी जैसे कह रहे थे हमारे मेजर साहब कि 44 RR शोपियां, कर्नल AK सिंह, खतरनाक, जबरदस्त। जब मैंने उसके सारे
क्या नाम उसके कुछ वीडियोस वगैरह देखे हिल गया मैं। और वाकई में कितनी जबरदस्त जिंदगी लोग जीते हैं, वाकई में मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझसे उनके 2IC ने कहा कि सर थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि इस कैंपस में आने वाली और जाने वाली सारी गाड़ियों पे सर्विलेंस हो सकता है, हम लोगों की हालत खराब होगी। हम लोग श्रीनगर तक पहुंचते बस राम राम कह के पहुंच रहे थे कि रास्ते में कहीं कुछ गाड़ियां हमें, यानी कि हम अगवा ना हो जाए, हो सकता था, क्योंकि जहां पे इतना जबरदस्त उनके ऑपरेशंस चलते, काम हो रहा है। तो सर वाकई में मैंने उसको जब घर पहुंच गया, मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कितना जबरदस्त काम कर रहे हो। तो सर वाकई में मुझे बहुत गर्व है अपने सभी जितने भी सोल्जर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस की, बहुत ही समस्याओं से, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए जिस तरीके से लोग देश की सेवा कर रहे हैं, सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, ये सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अंत में मैं अर्पिता मैम आपके लिए कहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। आपने बताया कि किस तरीके से वो इतिहास के पन्नों से किन शब्दों में गांधी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जिक्र किया था, और वाकई में काफी, और जो आपने तथ्य प्रस्तुत किए बहुत ही यानी कि विचारणीय है, और आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य होना ही चाहिए। और निश्चित रूप से भारत में बनी हुई वस्तुएं हो, एक भारतीय सोच हो, और वाकई में भारतीय जो हैं वो किसी से भी यानी कहीं अद्वितीय हैं, सेकंड टू नन। मेरे स्टूडेंट्स गुजरात में 8 साल आनंदालय डॉक्टर वर्गीस कुरियन का स्कूल, जो कि 8 ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन थे, वहां पे वाइस प्रिंसिपल होने का मौका लगा। आज मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स वहां पर हैं। जब वो कहते हैं कि सर हम MIT में, हार्वर्ड में, कॉर्नेल में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में, सर हम टॉपर्स में हैं, तो मैं बस बड़ी खुशी होती हूँ। मैं कहता हूँ बेटे, get your training and come back to India and give your 100% to your nation, because your nation, this needs your services. और वास्तव में Indians, they have great potential, children, they have great potential, and Indians are second to none. And recently we made a presentation while we showcased, the various features of our country, and we heard how many scientists, NASA from India, how many people the places. All right, chaliye, okay then. So thanks a lot, and it was a wonderful, this time discussing about Gandhiji, Gandhian philosophy, and how we can add value to our lives as well as life of the nation. May God bless all of us. हम लोग गांधी जी को और शास्त्री जी के जो दिए हुए, जो उनके विचार हैं, उनका जो जीवन का संदेश है, उनको अपने जीवन में उनको आत्मसात करें और देश को ऊंचाइयों पर लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू राजेश जी। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। सो आप सभी के सबके योगदान के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार जी।